Okay, students, welcome back to science class. So today is third class of the science in which we will continue the first chapter we have already started. And today is our topic neuron, type of neuron. So anybody can tell me what is neuron? In chat box, you can use your chat box, or one of you can unmute yourself and tell me what is neuron. Sir, neuron form all parts of nervous system. Yes, neuron form all part of our nervous system, or in other language we can say that the basic unit of nervous system is neuron. The basic system of nervous system is neuron. And how many types of neuron you have studied? How many types of neuron? There are three types of neuron. You can see on your screen there are three types of neuron: motor neuron, interneuron, and sensory neuron. And you can see most of the central nervous system effector part or muscle part is made up of motor neuron, and interneuron are the neuron which links sensory and motor neuron, and sensory neuron form the sense organs or to the central nervous system. Clear? So I repeat, sensory neuron जो हैं, sensory neuron ऐसे न्यूरॉन हैं जो कि ऐसा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जो हमें सेंसेस में हेल्प करते हैं. For example, our eyes, you can see our eyes वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रही होती हैं, ठीक है. तो वो जो लाइट रिसीव कर रही होते हैं उसको जो सेंस करते हैं और उस मैसेज को ब्रेन तक लेके जाते हैं, वो न्यूरॉन क्या कहलाते हैं? सेंसरी न्यूरॉन. और इसी तरह जो हम एक्शन करते हैं इफेक्टर्स के जरिए, उस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन. और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को जो लिंक करते हैं न्यूरॉन, इन न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं? इंटर न्यूरॉन. आए हम एक एनिमेशन देखते हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि मोटर न्यूरॉन कैसे काम करते हैं. तो मैं ये अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं, तो मैं वीडियो की एनिमेशन की स्क्रीन आपके सामने शो करता हूं. Yes, here is video. You can listen sound of it. Every time we run, spin, dive, drive, text, talk, or do anything at all, we rely on neurons. Each of us has 100 billion neurons or nerve cells in our bodies. That's the same as the number of trees in the Amazon rainforest. The nerves responsible for movement are called motor neurons. They carry the messages from our brains to our muscles, telling them how and when to move. To explain a bit better, I'm going to enlist the help of Phil. Phil is a very skilled medical researcher, but he's also a very talented musician. When Phil wants to play something on the piano, his brain sends out a series of electrical impulses. These hurtle down the motor neurons in his spinal cord. The message is then passed on to the muscles in Phil's fingers, causing them to contract. In this case, it allows Phil to play the piano, but the process is the same for any kind of movement. Most of us take it for granted that when we want to do something, our body will obey us. But for 2 in every 100,000 people, that's not the case. That's because they have motor neuron disease, a debilitating neurological condition.
in which the motor neurons inexplicably die off. When this happens, the brain can no longer effectively communicate with the muscles, and so they become weak and unresponsive. This affects the arms and legs, but can also affect the muscles involved in speech and swallowing, and even, eventually, the breathing muscles. Unfortunately, we're still not sure why motor neurons die. There have been lots of studies done, but so far, no successful cure has been identified. At our research lab, we're trying to change that. In our next video, we'll explain how we're trying to find treatments for this disease. So it was about motor neuron. Hopefully it is clear to you all. Okay, what is motor neuron and how they are working. What you have seen in the video, are muscles working. You see hands of the person who was playing piano. तो उसके जो हाथ काम कर रहे थे, उसके ये जो मसल्स थे उनकी वजह से, और ये मसल्स को कौन हेल्प कर रहा था काम करने में, अफेक्ट करने में? मोटर न्यूरॉन्स. So is it clear, or do you have any question regarding it? You can ask me. Here is the next topic, central nervous system. You already studied that nervous system or coordination system can be divided into two parts, which is central nervous system and peripheral nervous system. So we will study it one by one. So first is central nervous system. Central nervous system, what is central nervous system? Our brain and spinal cord. Our brain and spinal cord collectively form central nervous system. Our brain and spinal cord collectively form central nervous system. And brain is further divided into three portions. One is forebrain, hindbrain, and midbrain. फोरब्रेन जो है ये ऊपर वाला हिस्सा है, सेरिब्रम जिसको हम बोलते हैं, इसको फर्दर हम इन सारे पार्ट्स को देखेंगे. और मिड ब्रेन जो अंदर करके, यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें इस डायग्राम में, तो यू कैन सी दिस upper portion. If you can see my mouse, so this upper portion is known as forebrain. और इसके अंदर यहाँ पे जो है ये पोर्शन होता है वो मिड ब्रेन होता है. और बैक साइड पे ये जो पोर्शन है, जो बैक साइड पे पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन, जो कि हमारी नेक की तरफ होता है. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस all these part in detail. First part is forebrain. Forebrain can further be divided into three categories: cerebrum, thalamus and hypothalamus. तो cerebrum क्या होता है? ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? cerebrum. और cerebrum जो है, अगर आप अपने इस देखें सर को, तो ये दो हिस्सों में, एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड. जैसे हमारे पास दो कान है, तो एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे. इसी तरह सेरिब्रम भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. हाफ पोर्शन जो है लेफ्ट साइड है और हाफ पोर्शन राइट साइड. तो इसको हम लेफ्ट सेरिब्रम और राइट सेरिब्रम भी कहते हैं. ठीक है. और ये क्या करता है? इट कंट्रोल एक्शन लाइक थिंकिंग, हियरिंग, फीलिंग, इमोशंस एटसेट्रा. ठीक है. जैसे हम सोचते हैं, अगर कोई काम सोच रहे हैं हम, तो सोच जो रहे हैं हम काम, वो सोचने में कौन हेल्प कर रहा है? सेरिब्रम. इसी तरह हम जो सुन रहे हैं, सुनना भी उसको प्रोसेस कौन करता है? सेरिब्रम. और जो फीलिंग्स हैं, हमारी इमोशंस हैं, जैसे गुस्सा आना या खुशी फील करना या एक्साइटमेंट या फिर डल फील करना, ये सब काइंड ऑफ फीलिंग जो है, ये हमें कौन महसूस करवाता है? सेरिब्रम. ठीक है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि देयर इज अ टू पोर्शन ऑफ सेरिब्रम.
एक आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है और एक वायलेट कलर का, और आप देख सकते हैं कि राइट हेमिस्फीयर है और दूसरा लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सेकंड पोर्शन ऑफ फोरब्रेन इज थैलमस। थैलमस अगर आप डायग्राम में देखें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि सेरिब्रम के नीचे का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, थैलमस, ठीक है। और थैलमस जो है ये सेरिब्रम के अंदर मौजूद है और ये सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेंसरी फंक्शन कौन से हैं, जैसे हमारा देखना है, जैसे हमारा टच फीलिंग है, या सुनने की जो सेंस है हमारे अंदर। वी हैव 5 सेंसेस, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो ये सारी 5 सेंसेस को कौन इंटरेक्ट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन उन्हें कोऑर्डिनेट कर रहा है, थैलमस। क्लियर। और तीसरा जो ब्रेन का हिस्सा है वो क्या है, हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस, हाइपो का मतलब होता है लोअर, हाइपो मीन लोअर साइड, और थैलमस मीन थैलमस के, तो थैलमस के नीचे वाला हिस्सा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन ऊपर वाली डायग्राम में आपको थैलमस नजर आ रहा है, तो थैलमस के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा अगर आप देखें तो वो क्या है, हाइपोथैलमस, ठीक है। और हाइपोथैलमस जो है ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है, ब्रेन का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये। क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो कनेक्ट करता है हमारे दो कोऑर्डिनेशन सिस्टम को। हमारी बॉडी में दो तरह से कोऑर्डिनेशन होती है, एक तो न्यूरॉन्स के जरिए और दूसरी एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें केमिकल मैसेंजर्स के जरिए जो है कोऑर्डिनेशन होती है। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के दरमियान जो कनेक्शन है वो ये पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये इसके साथ आप नीचे ये ग्रीन सा छोटा सा पोर्शन भी देख सकते हैं, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें हार्मोन्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ दी हार्मोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय हाइपोथैलेमस और दे स्टोर्ड इन पिट्यूटरी, और वो फिर बॉडी फंक्शन कराने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाइपोथैलेमस इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक कनेक्शन है एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के दरमियान। और दूसरा अगर फंक्शन इसके देखे जाएं तो ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारी भूख को कंट्रोल करता है और प्यास को कंट्रोल करता है। तो दीज आर वेरी important function of hypothalamus. It control temperature, hunger and thirst of the body. The next part is midbrain. अभी हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन पढ़ रहे हैं और ब्रेन में हमने जो 3 पार्ट डिस्कस किए हैं, कौन कौन से, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस, ये 3 हिस्से जो हैं वो फोर ब्रेन का पार्ट हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या है, मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन क्या होता है, मिडल मिडल ब्रेन, यानी थैलमस या आप कह रहे हैं सेरिब्रम के अंदर वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। तो स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन प्रेजेंट बिलो सेरिब्रम which is called or which is known as mid brain। जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो सेरिब्रम है फोर ब्रेन पार्ट है, तो उसके नीचे थैलमस है और थैलमस के नीचे वाला ये जो हिस्सा है, इस पोर्शन को जो लिखा गया है ये पोर्शन मिड ब्रेन है। और ये करता क्या है, इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन एंड देन फर्दर प्रोसेस। ऊपर मैंने पढ़ाया है आपको कि थैलमस जो है सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो थैलमस इसके साथ मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट होगा और वो इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन की किसको ट्रांसफर कर देगा, मिड ब्रेन को, और वो इसे प्रोसेस करके मोटर न्यूरॉन के जरिए अफेक्टर काम करेंगे। इज इट क्लियर। द नेक्स्ट पोर्शन, लास्ट जो है हिस्सा ब्रेन का, वो है
हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन हमारी बैक साइड पे या गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन। और इसको फर्दर 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। एक तो सेरिबैलम है, दूसरा पोन्स और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। So I repeat, hindbrain can be divided into 3 parts: cerebellum, pons, medulla oblongata. Don't confuse cerebellum with the cerebrum. Cerebrum जो है वो large portion of the brain है, जबकि cerebellum जो है बैक साइड पे उस छोटा सा हिस्सा है। इसको हम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको स्मॉल ब्रेन भी कह सकते हैं हम। और इस पर अगर सम टाइम अगर हमें इंजरी आ जाती है तो उसकी वजह से डेथ भी। तो इसलिए ये जो बैक हमारी नेक का पोर्शन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उधर अगर कोई चोट लगे तो उसमें अगर हमारा हाइंड ब्रेन डैमेज होता है तो ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्लियर? सो cerebellum, where it is located? It is located at the back part of the cerebrum. और फंक्शन क्या है इसका? कंट्रोल मूवमेंट एंड एक्यूरेट पोस्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है और हमारा बैलेंस बनाता है। ठीक है, ताकि हम सही तौर से मूव कर सकें। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये सेरिबैलम है। ये भी सेरिब्रम की तरह का आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये सेरिब्रम से बहुत छोटा है। सेरिब्रम बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन ये सेरिबैलम उसी की तरह का नजर आने वाला हिस्सा है, इसलिए उसका नाम मिलता जुलता है। लेकिन ये जो है ये बैक साइड पे नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसके सामने आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? पोन्स। सेरिबैलम के बिल्कुल सामने डायग्राम में आप देख सकते हैं पोन्स लिखा हुआ है। और पोन्स ओवल शेप स्ट्रक्चर है जो कि मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे होता है। ऊपर थैलमस, थैलमस के नीचे हाइपोथैलमस, के नीचे मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे जो पोर्शन ओवल शेप पोर्शन है, ओवल स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोन्स। एंड दे कंट्रोल स्वॉल्विंग और स्वेट और टेस्ट एटसेट्रा। ये ऐसे फंक्शन को कंट्रोल जो करता है हमारा ब्रेन, उसको कौन डील करता है? पोन्स। और पोन्स के बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं जो पोर्शन है, इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। मेडुला जो है ये बैक पार्ट कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड। ये वो हिस्सा है जो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। और इसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हार्ट बीट, जो हमारे दिल की धड़कन है वो कंट्रोल कर रहा है मेडुला। और जो डाइजेशन है, इस फिनोमेना को भी कौन डील कर रहा है? मेडुला। Now the next part is of the central nervous system is spinal cord. Spinal cord क्या होती है आपको? हाँ पता है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो बैक साइड में जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम हड्डियां वर्टिब्रा, उनके अंदर एक जो है होता है बंडल ऑफ नर्व्स होता है। तो उस बंडल ऑफ नर्व्स को हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी जो है स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन आप अगर देखें तो ये इट्स इन वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और इट इज द एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का, क्योंकि इसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी को नर्व सप्लाई हो रही है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो
वॉयलेट कलर का वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो सारा का सारा कनेक्ट होता है नर्वस सिस्टम उसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो स्पाइनल कॉर्ड वो हिस्सा है ब्रेन का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो पूरी बॉडी को ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ से नर्व एक्सटेंशन जो है पूरी बॉडी को, लंग्स को भी जा रही हैं, आपकी थाइज को भी जा रही हैं, आपकी फुट को भी जा रही हैं, आपकी आर्म्स को भी जा रही हैं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जा रही हैं, आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को एक्सटेंशन, नर्व एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड के। इसलिए अगर स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज आता है, बैकबोन में डैमेज आता है, तो वो हमारी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, पैरालिसिस वगैरह भी हो सकता है अगर ज़्यादा डैमेज होता है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी स्पाइनल कॉर्ड की। और स्पाइनल कॉर्ड 31 पेयर ऑफ नर्व पर मुश्तमिल होती है। स्पाइनल कॉर्ड में कितने नर्व पेयर्स होते हैं? 31 पेयर्स, ठीक है। और इनको फर्दर हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए 31 नर्व पेयर, और इसमें एफरेंट नर्व्स भी होती हैं और इफरेंट नर्व्स भी होती हैं। एफरेंट नर्व्स और इफरेंट नर्व। एफरेंट और इफरेंट यानी एक तरह की नर्व ऐसी होती हैं जो ब्रेन की तरफ मैसेज लेके आ रही होती हैं, ठीक है। और इफरेंट नर्व ऐसी होती हैं जो ब्रेन से मैसेज लेके जा रही हैं, ठीक है। तो एक नर्व ऐसी होती हैं जो ब्रेन की तरफ मैसेज लेके आ रही हैं, और एक ब्रेन से मैसेज पूरी बॉडी में लेके जा रही हैं। तो इसमें जो है दोनों तरह की नर्व्स पाई जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में दोनों तरह की नर्व पेयर्स जो हैं पाए जाते हैं। और इसका फंक्शन क्या है आपकी स्क्रीन पे मैं बता चुका हूं पहले भी, स्क्रीन पे भी आप पढ़ सकते हैं। इट लिंक ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स, कंट्रोल इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी एक्शन। समटाइम जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उनको भी ये कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चल रहे हैं और चलते चलते आपके पाँव के नीचे कोई कील आ जाता है, नेल आ जाता है, तो वो आपके पाँव को लग जाता है, तो फौरन से आप क्या करते हैं? पाँव को ऊपर उठा लेते हैं कि कील अभी पूरा पाँव में नहीं जाएगा, थोड़ा सा चुभेगा ही तो पाँव ऊपर। तो ये एक्शन जो है ब्रेन नहीं करता, स्पाइनल कॉर्ड करता है। इसी तरह अगर हम किसी गर्म चीज के पास खड़े हैं और हमारा हाथ अचानक से उसको लग गया, तो फौरन से हम क्विकली रिस्पॉन्स करेंगे कि हाथ पीछे आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्विक एक्शन है, ठीक है, वो भी स्पाइनल कॉर्ड ही करवाता है, ठीक है। मैं दोबारा से, वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन में क्या फर्क है? वॉलंटरी जो हमारी मर्जी के मुताबिक है। अगर मैं किसी के साथ बात करना चाह रहा हूं तो ये मेरा एक वॉलंटरी एक्शन है। लेकिन अगर आप हार्ट बीट को देखें तो हार्ट बीट ने ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से हार्ट बीट को रोक लूं कि जी 5 मिनट के लिए मैं हार्ट को रेस्ट दे दूं। नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। वो कॉन्टिन्यूसली वो क्या करता है? बीट करता रहता है। तो दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो उसको इनवॉलंटरी, जो हमारी मर्जी के से काम नहीं होते, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काम खुद ब खुद हमारी बॉडी में होते रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वो इनवॉलंटरी एक्शन। और जो हम मर्जी से करते हैं उसको हम वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल है कि मैं अगर खाना खा रहा हूँ तो बाइट ऑफ फूड अगर मैं मुंह में डाल रहा हूँ तो चबा रहा हूँ, तो मुंह में बाइट जो है, बाइट ऑफ फूड डालना और उसको चबाना, तो ये मेरा वॉलंटरी एक्शन है। लेकिन एक बार मैंने चबा लिया और उसे निगल लिया, तो निगलने के बाद वो इनवॉलंटरी हो जाता है, क्योंकि वो खुद ब खुद पहले स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएगा। सो होपफुली क्लियर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है ये इनवॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करती है और ब्रेन को बॉडी के साथ भी कनेक्ट करती है। Here you can see there are peripheral nervous system. What is peripheral nervous system? Peripheral nervous system means all the nerves in our body are called peripheral nervous system.
or it can be divided into cranial nerves and spinal nerve. We will discuss it later on. Our time has finished, so I will stop my lecture here. So